اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چھری اٹھائی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹے نے خود اپنے باپ سے کہا کہ آپ اللہ کا حکم پورا کریں؟ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی۔ ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو خلیل اللہ کہلائے، جنہوں نے توحید کی خاطر ہر آزمائش قبول کی، جنہوں نے بت شکنی کی، آگ میں ڈالے گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ کہانی محض ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان، توکل اور اللہ پر مکمل بھروسے کی داستان ہے۔ یہ بات ہے قرآن پاک کی، یہ بات ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 25 مقامات پر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کے دوست۔ یہ مقام کسی معمولی انسان کو نہیں ملتا، یہ مقام اس شخص کو ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کو تیار ہو۔ آج کی دنیا میں جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی، ایک ایسے دور میں جب پوری قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو بت بنانے والا تھا اور اسی کے ذریعے روزی کماتا تھا۔ پوری قوم بتوں کو پوجتی تھی، ستاروں کو پوجتی تھی، چاند اور سورج کو سجدہ کرتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل فطرت پر تھا۔ وہ بچپن سے ہی سوچتے تھے کہ یہ بت جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، یہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے رشد اور عقل عطا فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس کی رشد عطا کی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ ایک رات کا منظر تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ انہوں نے سوچا شاید یہی رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، بڑا اور روشن۔ انہوں نے سوچا شاید یہ رب ہے، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر صبح ہوئی، سورج نکلا، پوری زمین کو روشن کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یقیناً یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اعلان کیا، اے میری قوم، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ تھا ایمان کی پہلی کرن، یہ تھی توحید کی پہلی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ لیکن آزر نے ان کی بات نہیں سنی، بلکہ غصے سے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ والد سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو دعوت دینا شروع کی، لیکن قوم نے بھی انکار کیا۔ اب ان کے دل میں ایک منصوبہ آیا، ایک ایسا منصوبہ جو پوری قوم کو ہلا کر رکھ دے، جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دے۔ قوم میں ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا، سب لوگ شہر سے باہر جانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے بت خانے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بت خانے میں داخل ہوئے، سامنے بڑے بڑے بت کھڑے تھے، سونے چاندی سے بنے ہوئے۔ لوگوں نے ان کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ تھا ایک واضح پیغام، ایک ایسا چیلنج جو پوری قوم کے عقیدے کو ہلا دینے والا تھا۔ جب لوگ واپس آئے
और अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। पूछने लगे कि ये किसने किया, हमारे माबूदों के साथ ये जुल्म किसने किया। किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना है, वो इब्राहीम कहलाता है। फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। पूरी कौम जमा हो गई। बादशाह नमरूद भी मौजूद था। लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, बल्कि इनके इस बड़े ने किया है, इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। ये जवाब सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में कहा कि हकीकत में तो हम ही जालिम हैं, लेकिन फिर इनकार पर अड़ गए और कहने लगे कि ए इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मौका देखा और वाज़ेह अल्फाज में कहा, तो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान? तबाही है तुम्हारे लिए और उनके लिए जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? ये बात सुनकर पूरी कौम में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हें कोई जवाब न मिला तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इसे मौत की सज़ा दी जाए, और वो भी ऐसी मौत जो मिसाल बने। उन्होंने कहा कि इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। आग की तैयारी शुरू हुई। कई दिनों तक लकड़ियाँ जमा की गई। इतनी लकड़ियाँ के पहाड़ बन गए। फिर उन्हें आग लगाई गई। इतनी बड़ी आग के परिंदे उसकी गर्मी से आसमान में जलकर गिरने लगे। लोग दूर से देख रहे थे, कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधा गया ताकि दूर से आग में फेंका जा सके। उस वक्त की कैफियत का तसव्वुर करें। एक तरफ दहकती हुई आग, दूसरी तरफ हज़ारों लोग, सब इंतज़ार में। सब देखना चाहते थे कि ये नौजवान जिसने इनके माबूदों को तोड़ा कैसे जलता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। उनके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और पूछा कि क्या आपको कुछ ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपसे नहीं, मेरा रब जानता है मेरी हालत को। फेंक दिया गया, आग में गिर गए। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। यह था अल्लाह का मोजिज़ा। आग अपनी फितरत भूल गई, जलाना छोड़ दिया, ठंडी और सलामती बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे थे जैसे बाग में बैठे हो। उनके जिस्म पर एक खराश भी नहीं आई, सिर्फ वो रस्सियाँ जल गईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। कई दिन गुजर गए, आग ख़त्म हुई तो लोगों ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज खड़े हैं। ये मंज़र देखकर पूरी कौम दंग रह गई। ये वाज़ेह सबूत था कि इब्राहीम सच्चे हैं और अल्लाह की मदद इनके साथ है। लेकिन फिर भी अक्सर लोगों ने ईमान नहीं लाया। आग से बचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन को छोड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करूँगा, बेशक वो गालिब और हकीम है। उन्होंने अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ सरज़मीन शाम की तरफ हिजरत की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था। फ़लस्तीन पहुँचे, वहाँ कुछ अरसा क़याम किया, फिर मिस्र की तरफ गए। मिस्र का बादशाह जालिम था। उसने जब हज़रत सारा को देखा तो बुरी नीयत से उन्हें अपने महल में बुलाया। लेकिन जब उसने उनके करीब जाना चाहा तो अल्लाह ने उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली औरत नहीं। उसने हज़रत सारा को एक लौंडी दी जिसका नाम हाजरा था और इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन आ गए। साल गुज़रते रहे लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत सारा ने ख़ुद हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दी। अल्लाह ने हज़रत हाजरा को औलाद अता फरमाई। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माईल रखा गया। ये बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आँखों की ठंडक था। लेकिन फिर एक और आजमाइश आई। अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माईल को एक ऐसी सरज़मीन में छोड़ दो जहाँ कोई इंसान नहीं, कोई पानी नहीं, कोई दरख्त नहीं। ये आज की मक्का की सरज़मीन थी। उस वक्त वहाँ बिल्कुल वीरान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म सुना और बिना किसी सवाल के तामील की। ये था उनका अल्लाह पर भरोसा। उन्होंने हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माईल को इस वीरान वादी में लाकर छोड़ दिया। सिर्फ थोड़ा सा पानी
और कुछ खजूरें छोड़ी। हज़रत हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजरा ने फिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया। हज़रत हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये था उनका ईमान, ये था अल्लाह पर भरोसा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआबो गया वादी में बसाया है ताकि वो नमाज कायम करें। तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार बने। पानी ख़त्म हो गया। नन्हा इस्माइल प्यास से बिलबिलाने लगा। हज़रत हाजरा परेशान हो गई। पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी, दूर तक नज़र दौड़ाई लेकिन कुछ नज़र ना आया। फिर मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ी, वहाँ से भी कुछ नज़र ना आया। यूँ 7 बार सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। ये था उनका तलाश और कोशिश। आज भी हज में सही करते वक्त हम उनकी याद ताज़ा करते हैं। जब वो 7वीं बार मरवा से वापस आई तो देखा कि उनके बेटे की एड़ी के पास से पानी का चश्मा फूट रहा है। ये था जमजम का चश्मा, अल्लाह का करम। उन्होंने जल्दी से रेत के ज़रिए इसके गिर्द इहाता बनाया ताकि पानी फैल ना जाए। अल्लाह का करम देखें कि इस वीरान जगह में पानी आ गया। फिर कबीले जुरहुम के लोग इस तरफ से गुजरे। उन्होंने परिंदों को उड़ते देखा और समझे कि यहाँ पानी है। वो आए और हज़रत हाजरा से इजाज़त मांगकर वहाँ बस गए। यूँ मक्का आबाद होना शुरू हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी कबीले में पले बढ़े, उनकी ज़बान सीखी, जवान हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अपने बेटे और बीवी की खैरियत के लिए आते रहते। एक दिन वो आए तो देखा कि इस्माइल तीर बना रहा है। बाप बेटे की मोहब्बत का मंजर। दोनों ने मिलकर काबा की बुनियादें उठाईं। ये वो घर था जिसे दुनिया का पहला घर कहा जाता है, अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया पहला घर। दोनों बाप बेटे ने मिलकर पत्थर उठाए, दीवारें बनाईं और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। काबा की तामीर मुकम्मल हुई, हुजरा अस्वद नस्ब किया गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद से एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी फर्मा बरदार हो। हमें इबादत के तरीक़े सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ रब, उनमें इन्हीं में से एक रसूल भी भेज जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे, बेशक तू गालिब और हकीम है। ये दुआ थी जो सदियों बाद पूरी हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई। लेकिन अब सबसे बड़ी आजमाइश बाकी थी। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ये ख्वाब एक बार नहीं बल्कि बार बार आया। अंबिया का ख्वाब वही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन ये कितना मुश्किल हुक्म था, अपने बेटे को जो बुढ़ापे में मिला, जिसे इतनी मोहब्बत से पाला, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो बता तेरी क्या राय है। ये सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए दुनिया रुक गई। एक नौजवान बेटे से पूछा जा रहा है कि मैं तुझे ज़बह करूँ, क्या जवाब होगा। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने बाप के बेटे थे। उन्होंने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुज़रें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये था ईमान का वो मेराज जहाँ बाप भी अल्लाह का हुक्म पूरा करने को तैयार और बेटा भी राज़ी। दोनों मिना की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा। बाप के दिल में क्या गुजर रही होगी, बेटे के दिल में क्या ख्यालात आ रहे होंगे। लेकिन दोनों खामोश थे। दोनों के दिलों में सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी। रास्ते में शैतान आया। 3 जगहों पर उसने वसवसा डालना चाहा। पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने इकलौते बेटे को ज़बह करने जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पत्थर मारे और भगा दिया। फिर शैतान हज़रत हाजरा के पास आया और कहने लगा, तुम अपने खाविंद को अपने बेटे को ज़बह करने से क्यों नहीं रोकती? हज़रत हाजरा ने भी उसे पत्थर मारे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम भाग क्यों नहीं जाते?
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी उसे पत्थर मारकर भगा दिया। ये 3 मकामात आज भी मिना में मौजूद हैं, जहाँ हज के दौरान जमरात में कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये शैतान को पत्थर मारने की याद है। मिना पहुँचे, वो जगह आ गई जहाँ ये अजीम कुर्बानी देनी थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद, मुझे मजबूती से बांध दें ताकि मैं हरकत न करूं। अपने कपड़ों को मेरे खून से बचाएं ताकि मेरी वालिदा को देखकर तकलीफ़ न हो, और अपनी छुरी को तेज़ कर लें ताकि जल्दी काम हो जाए और मेरी तकलीफ़ कम हो। और जब आप मेरी वालिदा के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। ये अल्फाज सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अज़्म में कोई कमी नहीं आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लुटा दिया। छुरी हाथ में ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाहु अकबर कहा और छुरी गर्दन पर फेरनी शुरू की। लेकिन अल्लाह का करम देखें, छुरी ने काटा नहीं। ये अल्लाह का मौजज़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बार बार कोशिश की, लेकिन छुरी ने काम नहीं किया। ये इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। ये साबित हो चुका था कि बाप और बेटा दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसी लम्हे आसमान से आवाज़ आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। यकीनन ये खुली आजमाइश थी। और अल्लाह ताला ने जन्नत से एक मेंढा भेजा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बाह किया गया। ये था वो लम्हा जब अल्लाह ने अपने खलील को कामयाबी से नवाजा। ये था वो लम्हा जब कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले लगाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये खुशी इस बात की थी कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को हमेशा के लिए महफूज कर दिया और फरमाया, और हमने बाद में आने वालों में उनका जिक्र बाकी रखा। सलाम हो इब्राहीम पर, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और ये भी फरमाया कि क़यामत तक मुसलमान हर साल कुर्बानी करेंगे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद होगी। ये अल्लाह की फरमाबरदारी और तौहीद का ऐलान होगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें आईं। हज़रत सारा को भी बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया, और अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि इसहाक के बेटे याकूब होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, नेकी का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए था। उनका हर अमल इबादत था। उनकी हर सांस शुक्र थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके दोनों बेटों हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मिलकर उन्हें दफनाया। लेकिन उनका नाम, उनका मिशन, उनकी दावत आज तक ज़िंदा है। उनकी औलाद से अंबिया का सिलसिला चला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इसराइल के अंबिया आए, जिनमें हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। आज भी जब हम काबा की तरफ रुख करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा होती है। जब हम हज करते हैं तो उनकी सुन्नत पर चलते हैं। जब हम सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं तो हज़रत हाजरा की मेहनत याद आती है। जब हम जमज़म का पानी पीते हैं तो अल्लाह का करम याद आता है। जब हम जमरात को कंकरियाँ मारते हैं तो शैतान को मुस्तरद करने की याद आती है। और जब हम ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं तो वो अजीम कुर्बानी याद आती है जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि ईमान में मजबूती ज़रूरी है। दुनिया का दबाव, लोगों की मुखालिफत, हत्ता कि अपने वालिद की नाराज़गी भी उन्हें हक़ से नहीं हटा सकी। आज के दौर में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपना दीन छोड़ देते हैं, वहाँ ये सबक बहुत अहम है। दूसरा सबक ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। आज भी अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो वो हमारी मुश्किलात आसान कर देगा। तीसरा सबक ये है कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि बीवी और बेटे को वीरान जगह छोड़ दो तो उन्होंने बग़ैर पूछे तामील की।
जब हुक्म मिला कि बेटे को ज़बह करो तो बग़ैर तरद्दुद के तैयार हो गए। ये है अल्लाह की रज़ा के आगे सर झुकाना। चौथा सबक ये है कि सब्र और इस्तिक़ामत ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बरसों अपनी कौम को दावत दी, लेकिन बहुत कम लोगों ने कबूल किया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी अगर हम नेकी का हुक्म दें और लोग ना माने तो हमें सब्र करना चाहिए। पांचवा सबक ये है कि कुर्बानी की रूह को जिंदा रखना चाहिए। सिर्फ जानवर ज़बह कर देना ही कुर्बानी नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करना असल कुर्बानी है। अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना कुर्बानी है। गुनाहों से बचना कुर्बानी है। अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करना कुर्बानी है। छठा सबक यह है कि ख़ानदान में मोहब्बत और एहतराम ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से नरमी से बात की। हालांकि वो बुत परस्त थे, उन्होंने अपनी बीवियों का ख्याल रखा, अपने बेटों से मोहब्बत की और सबके हुकूक अदा किए। सातवां सबक ये है कि दुआ की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर मुश्किल में अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल फरमाईं। आज भी हमें दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है।